Hello students, I hope you all are fine and well. And I am also hoping that you have also learned the previous lesson, that is chapter number 9, respiration in organisms. Now over here we are going to discuss about the chapter number 10, that is transport of substances in animals and plants. In this video we are going to cover about what is transportation, then we will see transportation in animals and transportation in plants. Here transportation in animals, in that one we will see general information, then about humans we will discuss in next video. Now let us start with the first point, what is transportation. पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द ट्रांसपोर्ट ऑफ substances like nutrients, respiratory gases, excretory products, hormones, etc. That process is known as transportation. क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ये प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ये सारे सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस? न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रीटरी वेस्ट, देन हार्मोन्स, ये सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी. This process is known as transportation. I hope you understood this term transportation properly. Once again I am repeating the definition. The process of transportation of substances like nutrients, respiratory gases. Respiratory gases में कौन से gases include हो गए? Oxygen and carbon dioxide. These two gases are known as respiratory gases that we already discussed in previous lesson. Then excretory waste. What are excretory waste? That we are going to learn in this lesson only, but in another part. Then hormones. This hormone you will learn in 8th standard. ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में. ये प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. नाउ अंडरस्टूड ऑल? Now let us see which substances are transported. Already we discussed the same thing in the definition, but again we will discuss that these substances that are needed to be transported, that is first of all food, that is already converted into simpler form via digestive system, then oxygen, that is one of the respiratory gases, then water and minerals, waste products that are removed from cell and body, and finally hormones. These are the substances that are needed to be transported throughout the body. Understood all? Now we will see transport in animals. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दिस ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन सेकंड चैप्टर, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट? यूनि का मतलब है वन एंड सेल्युलर मीन्स सेल. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से ही बनी है, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. While multicellular organism, what does it mean? Multi means many. So the organism whose body is composed of many cells are termed as multicellular organism. ये तो जनरली ये दो टर्मिनोलॉजी का तो रिवीजन ही हुआ है. ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन सेकंड चैप्टर. नाउ what we are going to discuss about the unicellular organism and multicellular organism in this lesson, let us see. These unicellular organisms do not possess any special transport system as we have, as humans are having. They don't have that type of transportation system. Simply they get nutrient and oxygen through diffusion process. This diffusion process we already discussed in chapter number 9. रेस्पिरेशन में जहाँ पे अल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे भी एक्सचेंज कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ओनली. मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोला जाता है डिफ्यूजन. तो सेम वे यहाँ पे भी डिफ्यूजन आपको मिलेगा. सो हियर again I am repeating कि unicellular organism gets nutrient and oxygen through diffusion process. How oxygen they are getting through diffusion process we discussed in chapter 9. सेम वे न्यूट्रिएंट्स भी वैसे ही वो लोग लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. सो हियर इज़ द डिफ्यूजन प्रोसेस. आप देख सकते हो सेम चीज़ हमने चैप्टर 9 में डिस्कस की थी. ये वही डायग्राम है डिफ्यूजन का. ठीक है, देखो कैसे एक साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले मोलिक्यूल से और एक साइड लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले मोलिक्यूल से. तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम हायर
टूवर्ड्स द लोअर मोलिक्यूल्स विल मूव। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। हाई का मतलब है ज़्यादा एंड कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ मोलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस। अमाउंट मतलब दैट रिप्रेजेंट नंबर, पर्टिकुलर नंबर ऑफ दैट मोलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आया? हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में वो सब्सटेंसेस वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब नंबर ऑफ सब्सटेंसेस आर मोर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उसको बोला जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन। सेम वे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लो मतलब कम, कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये क्या है? तो एक एरिया है जहाँ पे वो पर्टिकुलर मोलिक्यूल्स कंपेरेटिवली कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये दो वर्ड्स को समझना अच्छे से, हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको अच्छे से ये डिफ्यूजन टर्म समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल सी हाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको मल्टी सेलुलर का दिया है जो कि है हाइड्रा। हाइड्रा में जनरली कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होती है जैसे कि हमारे में ह्यूमंस में होती है, ऐसी नहीं होती है। सिंपली क्या होता है कि वाटर विल ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ हाइड्रा एंड इट विल ऑल्सो टेक अवे द बॉडी वेस्टेज फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। मतलब वहाँ पे जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है और ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होके पूरे मतलब ये सारे मोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इंस्टेड ऑफ दैट हाइड्रा में वाटर सर्कुलेट होता है पूरे उनके बॉडी में, और वाटर ही ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी वेस्टेज, ये सब कुछ वाटर ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, सो हाइड्रा बीइंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो डजंट हैव स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज humans are having. Another multicellular organisms are having specialized system for the transportation, और तब वो केस में वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड सिस्टम दैट इज बिल्ट फॉर द transportation of the molecules that we discussed earlier. So now let us see the different components of circulatory system in higher organism like humans and other animals like these wild animals and all. So here are the main components of circulatory system. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो हियर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन इज हार्ट, second one is blood and third one is blood vessels. Heart that is used to pump blood into the blood vessels. Blood vessels क्या है? So they are the pipelines in which blood is flown. Blood जिसमें बहता है वो पाइपलाइन को बोला जाता है ब्लड वेसल्स। जैसे कि हमारे घर में पानी के लिए पाइपलाइंस फिट की जाती है जिसके अंदर पानी बहता है, सेम वे ये ब्लड वेसल्स क्या है? दे आर एक्टिंग एज अ पाइपलाइंस in which blood is flown. There are main 2 types of blood vessels, that is arteries and vein. Capillaries thinnest blood vessel है जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे। Now third component is blood. ब्लड क्या है? तो जो हमें रेड कलर का हमारी बॉडी में हमें कभी भी लगता है तो रेड कलर का लिक्विड निकलता है, सो दैट इज नोन एज ब्लड। Blood is composed of mainly 3 types of cells, that is RBC. RBC का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। WBCs that is white blood cells and third one is platelet. ये 3 सेल्स, ये 3 टाइप के सेल्स ब्लड में मिलेंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड इन प्लांट्स। हमें तो यही लगता है कि प्लांट्स तो मूव कर नहीं सकते हैं, तो फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्या है? बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
कोई बात नहीं वो मूव नहीं कर सकता, बट उसको छोड़ के दूसरी एक्टिविटीज़, लाइफ प्रोसेसेस तो वो फॉलो करता ही है, ठीक है। तो उसके लिए उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी फूड चाहिए, उसको भी वाटर चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उसके बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होनी चाहिए। प्लांट के बॉडी में ये सब की वजह से, ये नीड की वजह से उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। Plants also do not possess the transportation system as humans and other higher animals possess. But as we already know that in plants, roots are there into the soil and roots are absorbing water and minerals from the soil. So water and minerals from the roots, it will be transported to the leaves and all the aerial parts of the plants. And in leaves, we know again that food is synthesized or food is produced into the leaves as leaves possess chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से लीव्स में फूड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ लीव से ईच एंड एवरी पार्ट में प्रोड्यूस्ड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब प्रिपेयर्ड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू दी ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स। समझ में आया? ये है रूट। रूट मतलब ROOT नहीं, ROUTE, रूट मतलब रास्ता, कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को, सो फ्रॉम रूट्स it will be water and minerals will be transported to the each and every part of the plant including stem, leaves, flowers, fruits, each and every branches to the top, and prepared food is transported from leaves to the all the parts of the plant including stem, including all the branches and roots. ये सारे पार्ट्स में फूड पहुंचाएगा किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से। नाउ वी विल सी द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच आर देयर इन द प्लांट्स। सो हियर आर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हैव अ लुक एट दिस। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स is also known as conduction. Remember this terminology. Transportation is also known as conduction in case of plants. Transportation, for transportation, plants possesses tissues. The name of those tissues are xylem and phloem. Remember its pronunciation, it is xylem and phloem. These are the two tissues which are acting as a pipelines for the transportation purpose. Remember, once again I am speaking, transportation is also known as conduction in case of plants. For the transportation, these two tissues are responsible, which are acting as a pipelines, that are xylem and phloem. Xylem का काम क्या है? तो it takes up water and minerals from roots towards the stem and then to leaves. मतलब जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया था कि रूट्स क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर रूट से दूसरे पार्ट तक, प्लांट के पार्ट तक जो हमें पहुंचाना है पानी एंड मिनरल्स को, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप, दैट इज जाइलम। तो जाइलम रूट जो भी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है उसको अपने में लेके फिर वो अलग अलग पार्ट तक पहुंचा देगा। सो लाइक दिस वे इट इज़ एक्टिंग एज अ पाइपलाइन. It takes up water and minerals from roots to stem and then to leaves. This is what the xylem is doing. The next tissue is phloem. Phloem क्या करता है कि जो भी prepared food है leaves में, तो it will take up that prepared food from leaves and then it will transport this prepared food towards the all the plant bodies including roots, stem, branches and all. वहाँ तक ये पहुँचाएगा. So like this way it is acting as a pipeline. Understood the basic difference between xylem and phloem? Xylem is a tissue which is conducting absorbed water and minerals
from the roots towards the stem and finally to leaves. While phloem is a conducting tissue which is transporting prepared food from leaves to all the different parts of the plant. This is what the transportation system in plant. Now one more terminology is given over here, that is translocation. Translocation is the process through which prepared food is transported via phloem from leaves to all plant parts. ठीक है, तो ये प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है. बट रिमेंबर, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो सिर्फ ये प्रिपेयर्ड फूड के ट्रांसपोर्टेशन से ही कनेक्टेड ये टर्म है. इससे जाइलम या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कोई लेना देना नहीं है. तो रिमेंबर दिस टर्म वेरी प्रॉपरली, दैट इज ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच prepared food is transported via phloem from leaves to all the plant body, or we can say all the different parts of the plant. This process is known as translocation process. I hope you are clear. Now see the different steps for the transportation of water and transportation of plant in detail. So please see this diagram. In this diagram, different steps are shown. How the water is absorbed and then how it is transported via xylem. तो उसमें फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय रूट हेयर. ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है, कि कैसे रूट हेयर वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से. उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन का टर्न. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू वेरियस प्लांट पार्ट्स थ्रू जाइलम वेसल्स. ठीक है, इस जाइलम को जाइलम वेसल मतलब हम किसको वेसल बोलते हैं कि जिसमें कुछ हम भर के किसी और को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको ही तो वेसल बोलते हैं. तो सेम वे जाइलम इज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क, दैट इज वाई ओवर हियर जाइलम इज टर्म्ड एज जाइलम वेसल. उसके बाद क्या है, दैट अपवर्ड पुलिंग ऑफ जाइलम सैप. जाइलम सैप मतलब क्या है कि जाइलम एक पाइपलाइन जैसा है, उसके अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स रखे हुए हैं, ठीक है, उसको जाइलम सैप बोला जाता है. जाइलम सैप इज ऑल्सो नोन एज एसेंट ऑफ सैप. अगर ये वर्ड याद नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ लिख लेना वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स बाय द फोर्स क्रिएटेड बाय द ट्रांसपीरेशन फ्रॉम लीव्स. ठीक है, अभी देखो जैसे कि हम घर पे नीचे हमारा वाटर रिजर्वर होता है, तो फिर हम मोटर की हेल्प से उसको ऊपर तक सीलिंग में हमारा मेन वाटर रिजर्वर टैंक होता है, वहाँ पे पहुँचाते हैं पानी को, और उसके लिए हमें फोर्स देना पड़ता है, दैट इज सक्शन फोर्स विच इज़ गिवन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर. आपको पता ही होगा. ठीक है, सेम वे रूट्स में से रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, फिर जाइलम में वो वाटर को हमें वाटर तो एब्जॉर्ब कर लेगी जाइलम, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है. तो अगेंस्ट ग्रेविटी अगर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है तो उसके लिए हमें एक अलग से फोर्स देना पड़ता है, उसको बोला जाता है सक्शन फोर्स. यहाँ पे ये सक्शन फोर्स क्रिएट कौन करता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. और ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से ये वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा. अभी ये ट्रांसपीरेशन कैसे ये सक्शन फोर्स क्रिएट करता है वो हमें अभी थोड़ी देर में हम वो भी लर्न करेंगे, मगर उससे पहले हम फ्लोएम का देख लेते हैं. ठीक है, so here is the transport system in plant in which specially prepared how prepared food is transported via phloem is shown over here. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पाइपलाइन करके दिखाई है उसमें एरो करके भी दिखाया है. अभी देखो ये लीफ है, लीफ के अंदर फूड का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में से जाइलम थ्रू लीफ तक पहुँचे, फिर वो वाटर का लीफ ने यूज़ किया और उसमें से फूड बनाया. उसके बाद ये देखो नेक्स्ट पाइपलाइन स्टार्ट होती है जहाँ पे एरो किया है, जहाँ पे लिखा है ना फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ, उसके नीचे एक एरो दिया है, तो वो क्या है, फ्लोएम टिश्यू है.
तो फिर वो फूड जो कि प्रिपेयर्ड हुआ है वो फ्लोएम में ट्रांसफ़र होगा एंड देन इट इज़ कंडक्टेड वाया फ्लोएम एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिखाया है कि ये एरो कहाँ पे एक अपवर्ड साइड जा रहा है और एक डाउनवर्ड साइड जा रहा है। इट मीन्स कि जो भी प्रिपेयर्ड फूड है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, अपवर्ड साइड में भी ट्रांसपोर्ट होगा एंड डाउनवर्ड साइड में भी ट्रांसपोर्ट होगा। डाउनवर्ड साइड में क्यों होना चाहिए? बिकॉज डाउनवर्ड साइड में स्टेम है, स्टेम को भी तो खाना चाहिए, रूट्स है जो कि अंडरग्राउंड है, सॉइल में है, तो रूट्स को भी खाना चाहिए, तो उसके वजह से डाउनवर्ड साइड में भी उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अपवर्ड साइड में बहुत ऐसी ब्रांचेस है कि जहाँ पे लीव्स नहीं होते, तो वो ब्रांचेस को भी तो खाना चाहिए, फ्रूट्स को फ्लावर्स वगैरह को भी तो एनर्जी चाहिए। तो इन सब की वजह से जो कि प्रिपेयर्ड फूड है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बल्कि जब ये आप जाइलम का देखोगे तो यहाँ पे नीचे रूट्स करके जो दिया है वहाँ पे आपको देखो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही वो एरो दिखाया है। इट मीन्स के रूट्स से टॉप पार्ट तक जहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रूट्स ही वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और कोई पार्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। तो एज रूट्स एंड रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, फिर ग्राउंड से ऊपर तक अपवर्ड डायरेक्शन में उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है विच इज़ अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी। जब भी कोई चीज़ अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी जाती है तब उसके लिए हमने जैसे कि आगे डिस्कस किया था कि एक फोर्स चाहिए जो कि हम डिस्कस करेंगे। मगर अभी आपको याद रखना है कि जाइलम थ्रू जो भी वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम रूट्स टू ऑल प्लांट पार्ट्स। एंड फ्लोएम थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। I hope you understood this concept properly. Please try to understand it properly because the same chapter is there in 10th standard, जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अगर अभी बेसिक क्लियर होगा तो वहाँ 10th में आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी। Now let us see how transpiration creates suction force that will enable water and minerals to move upward direction into the xylem tissue। तो पहले तो हम ये इसको बोलेंगे कि ट्रांसपिरेशनल पुल और ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल को सक्शन फोर्स भी बोला जाता है। सिंपल पुलिंग का मतलब क्या है? खींचना, ठीक है। तो यहाँ पे सक्शन फोर्स वही तो करता है कि पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। और ये खींचना किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ट्रांसपिरेशन। मगर पहले तो हमें ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन समझनी है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? तो इट इज़ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स दैट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 1। वो स्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टोमाटा से क्या होता है? तो जैसे ही सनलाइट फॉल होगी लीव्स पे, तो जो वाटर कंटेंट होता है वो वाटर कंटेंट का इवापोरेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, दैट इज़ द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर एंड इट गेट्स एक्सकेप फ्रॉम द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। उसकी वजह से अंदर की साइड लीव्स में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और वो रिक्वायरमेंट की मदद से ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, which is also known as suction force, is the force which aids in drawing the water upward from roots to leaves. Understood the definition? Once again I am repeating that transpiration pull क्या है? तो it is a suction force in which that is the force वो क्या करता है कि that draws the water into the upward direction from roots to the leaves, ठीक है। और ये पुल क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। और ट्रांसपिरेशन क्या है? दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा।
I hope you are clear with this transpiration and transpiration pool and what is the role of transpiration pool in the transportation of water. Now look at this diagram. This diagram indicates how the transpiration pool becomes one of the major driving force for the transportation of water. As you can see in the diagram, आप देखो कि root से that root will absorb water and minerals from the soil, then water movement into the upward direction. ठीक है, ये देखो यहाँ सारे पार्ट्स में वाटर का मूवमेंट मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मगर उससे पहले ऊपर जो एरो दिखाया है दैट इज़ व्हाट ट्रांसपिरेशन इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लीफ सरफेस थ्रू द स्टोमाटा. जैसे जैसे यहाँ पे वाटर कम होगा वो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा और वो प्रेशर की वजह से जाइलम में वो खींचता है पानी को अपने तरफ. सो एंड दैट खींचना इज़ व्हाट पुल. ठीक है, और वो किसके वजह से पानी को खींचता है? थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. इसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम भी दिखाई है कि पहले क्या होता है, तो वाटर एस्केप थ्रू दी स्टोमा, फिर क्या आता है वो वाटर ट्रैवल्स अप द अप इन द अप डायरेक्शन थ्रू दी जाइलम एंड देन which water is going to be transported, तो water which is absorbed from the soil by the roots. I hope this is clear to you what is transpiration and what is transpiration pool. With this the transportation in plants gets over. Now let us discuss various factors that affect the transpiration process. Transpiration process is affected by the number of factors like the condition of air, then the amount of moisture in the air, the number of stomata found on the leaves and the size of the leaves. ये 4 फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. हाउ दे आर अफेक्टिंग, लेट अस सी. The first factor is the condition of air. The warmer the air, higher is the rate of transpiration. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे सनलाइट फॉल होती है लीफ के ऊपर, वाटर गेट्स वार्मर और वो हाई टेम्परेचर की वजह से उसका इवापोरेशन हो जाता है एंड दैट वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म दैट इज़ वाटर वेपर. डिस्कस किया था हमने. ठीक है, तो टेम्परेचर मैटर्स अ लॉट. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी, बिकॉज जैसे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा वाटर इवापोरेट होके बन जाता है वाटर वेपर एंड दिस वाटर वेपर इज़ अ गैसियस फॉर्म. सो इट इमीडिएटली एक्सकेप इटसेल्फ फ्रॉम द स्टोमाटा. अंडरस्टूड. तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उतनी ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होगी. सो हियर द सेम थिंग इज़ रिटन, द वार्मर द एयर हायर इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. Then second factor is the amount of moisture in air. The lesser the amount of moisture in the air, higher is the rate of transpiration. जितना एयर में मॉइस्चर मतलब क्या है, तो इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. दैट इज़ व्हाट द मॉइस्चर कंटेंट, जो कि हमने ये 7th चैप्टर में लर्न किया था, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन वाले चैप्टर में मॉइस्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो वहाँ पे ये सेम चीज़ है कि जितना मॉइस्चर का कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हमें मिलेगी. ठीक है, बैलेंसिंग होना चाहिए एटमॉस्फेयर में और ये प्लांट बॉडी में वाटर कंटेंट का बैलेंस. तो वो बैलेंसिंग करने के लिए वो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाती है. देन थर्ड फैक्टर इज़ द नंबर ऑफ स्टोमाटा फाउंड ऑन द लीव्स. अभी जितनी स्टोमाटा ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा रास्ते मिलेंगे वाटर वेपर को बाहर निकलने के लिए, तो उतने अकॉर्डिंगली हायर ट्रांसपिरेशन रेट वी विल गेट. सो हियर इट इज़ रिटन दैट मोर द नंबर ऑफ स्टोमाटा हायर इज़ द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. जितने ज़्यादा रास्ते दिखाओगे उतने रास्ते ज़्यादा भी तो होंगे ना वहाँ से निकलने के. जैसे अगर आपके क्लासरूम में सिर्फ एक दरवाज़ा है तो आप सिर्फ एक दरवाजे से ही अंदर आ सकते हो और बाहर जा सकते हो, तो चांसेस आर वेरी लेस फॉर बंकिंग द क्लास.
बट सेम क्लास में अगर आपको दो दरवाजे मिल जाए तो एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड, तो जैसे आप लोग को पता ही है कि जैसे अगर टीचर का ध्यान नहीं है अच्छे से तो पीछे के साइड से हमने बंक लगा दिया, तो मतलब मोर नंबर ऑफ डोर्स यू गेट, देयर आर मोर चांसेस ऑफ बीइंग एक्सटेप्ट थ्रू द क्लास, मतलब चांसेस ऑफ बंकिंग इज मोर। सेम वे यहाँ पे भी ऐसा है कि जितने स्टोमाटा क्या है, डोर ही तो है, ओपनिंग ही तो है कि जहाँ से वाटर वेपर निकल सकती है, तो जितनी ज़्यादा स्टोमाटा होगी उतना ही ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। देन फोर्थ फैक्टर इज द साइज ऑफ द लीव्स, द लार्जर द लीफ फास्टर इज द ट्रांसपिरेशन, मतलब कि जैसे लीफ की साइज़ बढ़ेगी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी बढ़ेगी। मतलब आप सिंपली देखो कि जितना साइज लीफ का साइज बड़ा होगा, मोर सरफेस एरिया इज देयर, तो मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट विल बी फॉल ऑन द लीफ सरफेस, और जितनी ज़्यादा सनलाइट फॉल होगी उतने ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर इवापोरेट होके बनेगा वाटर वेपर, एंड दैट इज़ व्हाट मोर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यू विल गेट। Understood? So these are the four factors that are affecting the rate of transpiration in plants. Why this transpiration process is much more important? Why we are discussing about the transpiration process? So due to several advantages, this transpiration process becomes much more important. One importance we have already seen, that is it is helping in the water transportation to the each and every part of plant. But other than that, there are other advantages also. So let us discuss those advantages in detail. The first advantage, or we can say importance, is exchange of gases. This transpiration helps in the opening of stomata. This helps in gaseous exchange, and the plant is able to easily absorb carbon dioxide from the air, which is needed for the photosynthesis. Understood? स्टोमाटा कब अपना काम करेगी गैसियस एक्सचेंज का? जब भी वो ओपन होगी, एंड वी डिस्कस्ड इन फर्स्ट चैप्टर दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स, जिससे वो स्टोमाटा बना है। अभी गार्ड सेल स्टोमाटा को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, उसके लिए कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है? तो उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है वाटर। अगर इनफ अमाउंट में वाटर होगा, ठीक है, तब स्टोमाटा ओपन होगी, और जब भी वाटर कंटेंट कम होगा तब स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी। डे टाइम में क्या होता है कि जब भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और सनलाइट फॉल होती है, तब वो वाटर का कन्वर्जन हो जाता है वाटर वेपर में, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो स्टोमाटा ओपन हो गई और वहाँ से वाटर वेपर बाहर निकल गई। सो देखा यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आई। तो लाइक दिस वे दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज हेल्पफुल इन द exchange of gases, मतलब it will help the stomata to get open, and as soon as it gets open, easily gases exchange will be done for either for the respiration or for the photosynthesis. photosynthesis के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री अंदर होगी एंड ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, एंड रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। दैट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। अनदर एडवांटेज इज दैट इज कूलिंग इफेक्ट। Evaporation of water vapor given out during the transpiration brings down the surface temperature of the plant. Brings down मतलब कम होना। Thereby it make it cool. Transpiration thus provides a significant cooling effect that also helps to prevent damage to plant cells due to overheating. समझ में आया कि ड्यू टू ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो प्लांट का टेम्परेचर कम होता है। ये टेम्परेचर कम सिर्फ प्लांट में नहीं होता, हमारे केस में भी होता है, ह्यूमंस के केस में या फिर दूसरे एनिमल्स के केस में भी होता है, मगर हमारे केस में उसको ट्रांसपीरेशन नहीं, इसके जगह पे हम बोलते हैं पर्सपीरेशन। पर्सपीरेशन मतलब पसीना आना। तो अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो वी आवर बॉडी यूज टू स्वेट अ लॉट। स्वेट मतलब पसीना आना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पसीना आएगा तो उतना वाटर कंटेंट इवापोरेट होके वो हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है। इट मीन्स कि वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को कन्वर्ट कर देता है वाटर वेपर में, एंड देयर बाय इट विल गिव अस कूलिंग इफेक्ट।
सेम वे प्लांट में भी ऐसा होता है, मगर प्लांट में वो प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से वाटर वेपर फॉर्म होने की वजह से वो अपना प्लांट का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है और अपने आप को कूल रखता है, जिसकी वजह से जो ओवर हीटिंग की वजह से जो डैमेज होता है प्लांट को वो कम कर सके। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज इफेक्ट ऑन मिनरल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, दैट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। द ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ लो प्रेशर एंड अ पुलिंग फोर्स दैट pulls up the water and minerals. This is similar to what happens when we drink juices or water through a straw. The water and minerals are then transported to different parts of the plant, that we already discussed. Due to this importance, transpiration process becomes much more important. Now let us see one activity to show that transpiration process is actually done in plants. So aim of this activity is to demonstrate transpiration, materials needed, a potted plant, a polythene bag, a glass jar and a plate. Method क्या है? तो first of all we need to place the potted plant on the plate and enclose the soil of the pot in a polythene bag. मतलब पूरा हमें जैसे डायग्राम में दिखाया है ना, ऐसे ही हमें पूरा उसको कवर कर लेना है. Now cover the plant with a glass jar. Then leave it undisturbed for some time. थोड़ी देर उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको ऐसे ही असेंबली को रहने दो. फिर आफ्टर सम टाइम you need to observe the assembly. So what will you observe? You will notice tiny droplets of water on the inner surface of the glass jar. Glass jar के अंदर आपको tiny water droplets मिलेंगे. तो उससे आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, कहाँ से ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए. ठीक है, हमें पता है. ठीक है, ये रेगुलर एक्टिविटी है, हमारे घर पे भी हम करते हैं. अगर हम पानी को गर्म करने रखते हैं या फिर दूध को गर्म करने रखते हैं, गर्म हो जाता है, बाद में हम उसके ऊपर एक लीड ढक देते हैं, उसको कवर कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम वेन एवर यू विल ओपन द लीड के अंदर की साइड की सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलेंगे. तो ये सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी है. ठीक है, मगर ये हमने प्लांट के साथ की है कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए. तो प्लांट्स की बॉडी में से जो वाटर कंटेंट था वो इवापोरेट होके बाहर निकला, मगर उसको एटमॉस्फेयर में जाने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिली, बिकॉज हमने वो प्लांट को कवर कर दिया है ग्लास जार से. तो दैट वाटर वेपर विल स्ट्राइक विद द जार. तो जैसे वो जार से टकराएगी, इट गेट्स कूल, वो कूल हो जाती है. और जब भी वाटर वेपर और वी कैन से स्टीम जब भी कूल हो जाती है, तब वो अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस. ये कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फ्रीजिंग, ये सारी चीज़ें आपने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. तो ये सेम कंसेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए आइडियली. तो जैसे ही वो ग्लास जार से टकराएगी, इट गेट्स कूल, और कूलिंग की वजह से वो कंडेंस हो जाता है. वो वाटर वेपर गेट्स कंडेंस्ड एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट वी कैन कंक्लूड दैट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हैज़ बीन डन. तो कंक्लूजन क्या है? द वाटर कम्स मेनली फ्रॉम द लीव्स as the soil has been covered completely. This shows that plants give out water vapor during the transpiration process. Understood all? This activity is very much clear and it is too much easy to understand. जैसे कि मैंने आपको एक रेगुलर एग्जाम्पल बोला किचन में जो हम करते हैं, उसके साथ इसको कोरिलेट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. और अगर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो एक बार खुद एक्सपीरियंस करना और फिर कंक्लूजन अपना नोट करना. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू प्रूव दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम. What are the materials we require? Again we require a twig, an empty jam jar, red or blue food coloring, water. This thing we require. हमें करना क्या है? पहले तो आप डायग्राम को देखो, ऐसे हमें असेंबली बनानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू fill the jam jar 3/4 with the water. Then add a few drops of red or blue food coloring to the water. मतलब कलर वाला पानी आपको बनाना है. Then place the twig in this water. फिर वो जो आपने डाली ली है ना, ट्विग मतलब डाली, उसको इसके अंदर रख दो.
देन रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days, 5-6 दिन बाद अपना रिजल्ट रिकॉर्ड करना। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे, दैट फेंट फ्लैक्स ऑफ कलर्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 5 days. If a cross section of the stem is cut, tubes colored with red or blue can be seen towards the center of the stem. This is where xylem is present. xylem कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कि स्टेम के सेंटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 5-6 दिनों बाद जब आपने अपना रिजल्ट देखा, देखो यहाँ पे ब्लू और रेड लिखा है, मतलब 2 में से एक ही कलर यूज़ करना, दोनों मत यूज़ करना। तो जो कलर आपने डाला था 5-6 दिन बाद देखोगे तो लीव्स के ऊपर उसके पैचेस, छोटे छोटे से पैचेस दिखेंगे आपको। वो क्या इंडिकेट करता है कि ट्रांसपोर्टेशन ये कलर का हुआ है। अभी हमने कलर तो कहाँ डाला था, पानी में डाला था, तो अगर पानी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा तभी तो ये कलर भी ट्रांसपोर्ट हुए होंगे। ठीक है, अगर आपको क्लियरली रिजल्ट देखना है तो फिर आप वो स्टेम को, वो ट्विग को बाहर निकालो, जो पार्ट नीचे डूबा हुआ था ना उसमें से या फिर कहीं से भी वो उसके स्टेम को कट करो। ठीक है, और फिर वो स्लाइड बनाओ और माइक्रोस्कोप में देखो तो एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे जो एनलार्ज करके जो इमेज दिखाई है ना, वैसी इमेज आपको दिखेगी। ये जो छोटे छोटे सर्कल ओवल शेप दिख रहे हैं ना, दैट इज़ व्हाट द जाइलम टिश्यू है ये। तो वो जाइलम आपको वो पर्टिकुलर कलर की दिखेगी। अगर रेड कलर लिया है तो रेड कलर की दिखेगी, ब्लू कलर लिया है तो ब्लू कलर की दिखेगी। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो दैट दिस शोज दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अंडरस्टूड ऑल? This activity clear cut says that xylem is only responsible for transporting water and minerals. Remaining part of this chapter we will discuss in other parts. So please keep watching the rest parts of the same chapter also. Please start reading the chapter from the textbook. Then and then you will understand it more better way. Thank you so much.